প্রায় 2 মাস বন্ধ থাকার পর আবার চালু হলো ভারত থেকে বাংলাদেশের ভিসা পরিষেবা। এই ভিসা পাওয়ার জন্য আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের ভিসা কেন্দ্রের সামনে সোমবার সকাল থেকেই ছিল ভিড়। বাংলাদেশে যাওয়ার আশায় বহু মানুষ নতুন করে ভিসার আবেদন করতে लाइने दाঁড়িয়ে। भाई आप बताओ, आप तो कहते थे कि बांग्लादेश में तो भूखमरी के हालात हैं, बांग्लादेश बहुत टीचर मुल्क है, बांग्लादेश में तो जाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखा लाइनों में लगे हुए हैं, ये अंत भक्त आने के लिए तैयार हैं बांग्लादेश में, और ये कहते थे कि बांग्लादेश में तो इंडियन जाते नहीं हैं। ये देखो भाई सबूत सबके सामने, त्रिपुरा में अगरतला में कैसे जो एम्बेसी है बांग्लादेश की, वहां पर किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियन हैं वीजा लेने के लिए मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि हम बांग्लादेश में जाएं। अब वो लोग सामने आए जो कहते थे कि ये जो हिंदुस्तानी हैं ये नहीं जाते बांग्लादेश में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, अब किस तरह से जो वक्त का पहिया है वो घूमता है और इंडियन के लिए बड़ा शर्म का मकाम है कि कैसे वो बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे, बांग्लादेश को ताना देते थे कि बांग्लादेश तो गरीब मुल्क है, बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं हैं, अनरेस्ट है, ये है वो है, और वहाँ पर इंडियन नहीं जाते बल्कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। लेकिन इसका एक सबूत मिला है, एक वीडियो क्लिप मिली है जिसमें आप देखेंगे, वो हम देखते हैं कि किस तरह से जो त्रिपुरा और अगरतला उसका जो कैपिटल है वहां पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं वीजा हासिल करने के लिए बांग्लादेश का। और बांग्लादेश में आने के लिए कोई एज अ टूरिस्ट आ रहा है, कोई बिजनेस के मामले में आ रहा है, कोई जॉब करने के लिए आ रहा है बांग्लादेश में, ये हिंदुस्तानी ना। लेकिन जो हिंदुस्तानी अंत भक्त मोदी भक्त है, मैं मूत्र भक्त कहने लग गया था, सॉरी, मोदी भक्त, वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातें करते थे, ताने कसते थे बांग्लादेशी दोस्तों को कि भाई आप लोग आते हो इधर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में, क्या करने के लिए आते हो, आप उधर रहा करो बांग्लादेश में। लेकिन अब वो सारे के सारे दोस्तों आ रहे हैं बांग्लादेश में, यानी क्या करने के लिए, जॉब करने के लिए, क्या करने के लिए, आप सबको पता है ना, बिजनेस वीजा लेकर आते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। প্রায় 2 মাস বন্ধ থাকার পর আবার চালু হলো ভারত থেকে বাংলাদেশের ভিসা পরিষেবা। এই ভিসা পাওয়ার জন্য আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনের ভিসা কেন্দ্রের সামনে সোমবার সকাল থেকেই ছিল ভিড়। বাংলাদেশে যাওয়ার আশায় বহু মানুষ নতুন করে ভিসার আবেদন করতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল 9টা থেকে দুপুর 12টা পর্যন্ত ভিসার আবেদন জমা দিতে পারেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভিড় এতটাই বেশি ছিল যে অনেক আবেদনকারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দিতে পারেননি, তাদের হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে। তবে আগরতলার বাসিন্দা তপন ধর অবশ্য সেই দলে নেই। তিনি ভিসার আবেদন জমা দিতে পেরেছেন। তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে 1 এপ্রিল তিনি পাসপোর্ট ফেরত পাবেন। আমি বাংলাদেশের যাওয়ার জন্য ভিসার আবেদন করেছি আজকে। তো আমার ডেট দিয়েছে 1 এপ্রিল 2026। তো আমার ভিসার আবেদন করেছি আজ, কিন্তু ভিসা পাওয়ার জন্য লেট হবো প্রায় মাস দেড়েক। তো আমি আবেদন করেছি, এই জন্য আমি খুবই আনন্দিত, আমি গর্বিত। তা আবার পুনরায় আমি বাংলাদেশ যেতে পারবো। বিগত অনেক দিন ধরে আমি ট্রাই করছিলাম, ভিসা অফিসে আবেদন করার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু পাইনি, ভিসা অফিস বদ্ধ ছিল। গত 22 ডিসেম্বর 2025 বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অনিবার্য কারণে 23 ডিসেম্বর 2025 থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের ভিসা ও কনসুলার পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন মিশনের প্রধান SM আলমাস হোসেন। সাধারণত প্রতিদিন এই মিশন থেকে গড়ে প্রায় 100 থেকে 150টি
ভিসা দেয়া হতো। পরিষেবা বন্ধ থাকায় বহু মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। অনেকে জরুরি কাজ ছিল, অনেকে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ভিসা দেওয়া শুরু হওয়ায় তারা এখন স্বস্তিতে। ত্রিপুরার উনকোটি জেলার কৈলা শহরের বাসিন্দা ফজিলুল নেসা তো ভিসা হাতে পেয়ে গেছেন, ফলে তাঁর আনন্দ আরও বেশি। আমি প্রতিদিন 2 মাস আগে ভিসা জমা দিছিলাম, এখন ভিসাটা আজকে আমি পাইছি, খুব খুশ হয়েছি। আত্মীয় স্বজন আসন দেখা যাইম যেন কত বছর পরে। না আমি তো যাই পাসপোর্ট করিয়া বছরে 2বার 1বার যাই। শুধু যারা ভিসার আবেদন করেন তারাই নয়, ভিসা অফিসের সামনে অনলাইন ফর্ম ফিল আপ সেন্টারগুলিও এতদিন ফাঁকা ছিল। সেলিমের এমনই একটি সেন্টার আছে। ভিসা দেওয়া শুরু হওয়ায় তিনিও খুশি, আবার কাজ পাবেন তিনি। বিগত ডিসেম্বরের 22 তারিখ ভিসা অফিস বন্ধ ছিল, তখন থেকে আমাদের অফিসও টোটালি বন্ধ ছিল। আজকে ফেব্রুয়ারি 23, 2026 আজকে ওপেন হলো। আজকে থেকে আমরা সকাল থেকে এসে কাজ শুরু করলাম, ফর্ম ফিল আপ করলাম। মোটামুটি আজ আমাদের এখানে প্রায় 50 থেকে 60 জন ফর্ম ফিল আপ করলো। এতদিন ধরে আমাদের কোনো কাজ ছিল না, বিগত ডিসেম্বর মাস থেকে আমরা বসেই ছিলাম। তো একদিকে ভালো হয়েছে, সে আবার শুরু হয়েছে। প্রতীক্ষা শেষ। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে। আবার তারা বাংলাদেশে যেতে পারবেন। তারা আশা করছেন আবার আগের মতো বাংলাদেশে যাতায়াত শুরু হবে। ত্রিপুরা থেকে তন্ময় চক্রবর্তী। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब अब जो हिंदुस्तानी हैं और त्रिपुरा के जो सिटीज़न हैं अगरतला में उनकी जो लाइनें हैं लोगों की वीज़ा हासिल करने के लिए बांग्लादेश का किसी और मुल्क का नहीं। और आपको ये भी बताएं कि तीसरा बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान जिसके शहरी बांग्लादेश में आकर कमाते हैं, यानी तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से रेमिटेंस आता है हिंदुस्तान में, वो बांग्लादेश से आता है। बांग्लादेश में हिंदुस्तानी आते हैं, कमाते हैं वहाँ पर, लेकिन ये अंतभक्त कहते हैं कि बांग्लादेशी ज़्यादा आते हैं। लेकिन इनकी अगर तादाद को देखें, जितने बांग्लादेशी जाते हैं ना उतने ही हिंदुस्तानी भी तो आते हैं ना बांग्लादेश में। लेकिन अगर ये कहना कि भाई देखें सिर्फ बांग्लादेशी आते हैं, ये गलत है। और किस तरह से बांग्लादेश में अब देखें नई हुकूमत आई है, विश्वास बढ़ रहा है, वीज़ा दोनों तरफ से ओपन हो रहा है। और पहले इंडिया ने खुद ही वीज़े के ऊपर बैन लगा दिया था, और लेकिन अब दोस्तों वो वीज़ा ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आपने फीडबैक ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।